15 ماہ کی قتل و غارت کے بعد غزہ میں جنگ بندی کا آغاز، مزاحمت کاروں کا گلیوں میں گشت، عوام کی جانب سے والہانہ استقبال۔ فلسطینی مزاحمت کاروں نے جنگ بندی کے بعد دیر البلح اور خان یونس کی سڑکوں پر گشت کیا۔ فلسطینی شہریوں نے نعرے لگا کر اور ہاتھ ہلا کر فلسطینی مزاحمت کاروں کا استقبال کیا۔ ہزاروں فلسطینی پولیس افسران مختلف علاقوں میں تعینات، شہری انتظامیہ نے گلیوں کو دوبارہ کھولنے اور بحالی کا کام شروع کر دیا۔ امدادی سامان پر مشتمل سینکڑوں ٹرک غزہ میں داخل۔ جنگ بندی 6 ہفتوں کے لیے ہوگی۔ حماس نے 3 اسرائیلی خواتین قیدیوں کو رہا کر دیا۔ رومی گونن، ایملی ڈاماری اور ڈورون اسٹین شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے تینوں خواتین کے اسرائیل پہنچنے کی تصدیق کر دی ہے۔ حماس نے اسرائیلی مغویوں کو ریڈ کراس کے سپرد کیا۔ حماس نے 95 فلسطینی قیدیوں کی فہرست اسرائیل کو فراہم کر دی۔ اسرائیلی حکام کی قیدیوں کی فہرست موصول ہونے کی تصدیق، تکنیکی پیچیدگیوں اور مسلسل بمباری کے باعث فہرست کی فراہمی میں تاخیر ہوئی۔ سوا سال کی جنگ نے غزہ کا انفراسٹرکچر مکمل تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے بستیاں ملیا میٹ، غیر اسپتال، سکولز اور کالجز کھنڈر بن گئے۔ غزہ سٹی، شمالی غزہ، خان یونس، رفح، جبالیہ، دیر البلح شدید متاثر۔ غزہ میں 60% عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا، 92% گھر تباہ، 88% سکولز متاثر ہوئے۔ غزہ کے تمام اسپتال مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ صہیونی گولہ باری کے نتیجے میں فلسطین کا اربوں ڈالر کا نقصان۔ اسرائیلی جارحیت میں 47,000 کے قریب فلسطینی جان سے گئے۔ 1,10,000 سے زائد افراد گولہ باری کا نشانہ بن کر زخمی ہوئے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کی تازہ بمباری، مزید 19 فلسطینی شہید، 25 زخمی ہو گئے۔ لٹے پٹے فلسطینیوں کی تباہال گھروں میں واپسی۔ فلسطینیوں نے سوشل میڈیا پر تباہ شدہ اسرائیلی بختربند گاڑیوں اور بلڈوزروں کی تصاویر شیئر کر دیں۔ غزہ اسرائیلی فوجی ساز و سامان کا قبرستان بن گیا۔ اسرائیلی فوج جنوبی غزہ میں رفح سٹی سے نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج مصر سرحد کے ساتھ فلاڈیلفی راہداری کے ساتھ موجود رہے گی۔ اگلے مرحلے میں مصر کے ساتھ رفح کراسنگ کھولی جائے گی۔ تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو کے معاملات طے ہوں گے۔ فلسطینی زخمیوں کو لینے کے لیے یمن کے صنعاء کے اسپتالوں میں ہنگامی الرٹ جاری۔ آج غزہ میں بندوقیں خاموش ہو گئیں۔ ہماری مؤثر پالیسی کے باعث جنگ بندی معاہدہ نتیجہ خیز ہوا۔ اب غزہ معاہدے پر عمل درآمد ٹرمپ انتظامیہ پر منحصر ہے۔ معاہدے کے اگلے مرحلے میں یرغمالیوں میں شامل اسرائیلی فوجی رہا ہوں گے۔ غزہ معاہدے کا دوسرا مرحلہ حماس کو اقتدار سے ہٹانے کو یقینی بنائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا آخری خطاب۔ بائیڈن نے جاتے جاتے مزید 5 قیدیوں کو معاف کر دیا۔ امریکی صدر کا 2 ملزموں کی سزاؤں میں کمی کا بھی اعلان۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سزاؤں میں معافی اور کمی کے ملزمان میں شامل نہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے گزشتہ روز جو بائیڈن سے صدارتی معافی کی اپیل کی تھی۔ ویلکم ٹرمپ، بائے بائے جو بائیڈن۔ ڈونلڈ ٹرمپ آج دوسری بار امریکہ کی کمان سنبھالیں گے۔ نو منتخب امریکی صدر کی حلبتداری کی تقریب آج ہوگی۔ تمام تیاریاں مکمل۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات۔ وائٹ ہاؤس سے 3 کلومیٹر تک کا علاقہ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ دارالحکومت واشنگٹن میں درجہ حرارت -11 ڈگری تک گرنے کا امکان۔ ٹرمپ اوپن ایئر کی بجائے عمارت کے اندر روڈینڈا ہال میں منصب کا حلف اٹھائیں گے۔ کیپٹل ہل کی عمارت میں صرف 600 لوگوں کی شرکت کی اجازت دینے پر غور۔ عمارت کو اندر حلبتداری کی تقریب رکھنے پر ڈیموکریٹس کی ٹرمپ پر تنقید۔ سرد موسم بہانہ ہے، معاملات کچھ اور ہیں۔ نائب صدارتی امیدوار ٹم والز۔ نو منتخب 47 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 14 جون 1946 میں نیو یارک کے علاقے کوئنز میں پیدا ہوئے۔ ٹرمپ سیاستدان ہونے کے علاوہ کامیاب کاروباری شخصیت اور متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ ٹرمپ کی پہلی کتاب دی آرٹ آف دی ڈیل 1987 میں شائع ہوئی۔ امریکی صدر نے 2004 میں ریالٹی ٹیلی ویژن شو شروع کیا۔ ٹرمپ اپنے پہلے دور اقتدار میں متعدد متنازع فیصلوں کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی 3 شادیاں اور 5 بچے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اثاثوں کا تخمینہ 7 ارب 16 کروڑ ڈالر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر حالیہ انتخابی مہم کے دوران 2 مرتبہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔
जिला कुरम में शरपसंद अनासर के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई करने का फैसला। पेशावर में कुरम की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। रियासत पुरअमन अनासर के साथ खड़ी है। जालिम अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुतासरा इलाकों में मौजूद चंद शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। अमन मुआहदे पर कानून और पश्तून रवायात के मुताबिक अमल दरामद कराया जाएगा। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और सिविल इंतजामिया की मदद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद होंगी। तर्जमान केपी हुकूमत का मौक़िफ़, अवाम से मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन की अपील। ऑपरेशन मुकामी आबादी नहीं, शरपसंदों के खिलाफ है। किसी के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत कोशिशों के बाद कुरम में अमन मुआहिदा हुआ। शरपसंदों ने काफिले पर हमला करके अमन मुआहिदे को सबूताज करना चाहा। काफिले पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आज से हंगू में TDPs कैंप्स लगाना शुरू करेंगे। कमिश्नर कोहाट और RPO कोहाट की हंगू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुरम मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी। 22 ट्रकों पर मुश्तमिल एक और काफिला कुरम पहुंच गया। 1000 कंबल, 1000 रजाइयाँ, 1000 चटाइयाँ, 500 खैमे शामिल। हाइजीन किट्स, सोलर लैंप्स और किचन सेट भी शामिल हैं। सामान बेघर अफराद में तकसीम किया जाएगा। कुरम के लिए मजीद सामान भी हंगामी बुनियादों पर मुहैया किया जाए। PDM में सिक्योरिटी फोर्सेस ने योग में खारजियों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के शदीद तबादले में फितना अल खवारिज के 5 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। पाकिस्तान बार अफगान उबरी हुकूमत को सरहद पर मौसर इंतजाम करने का कह चुका है। उम्मीद है अफगान उबरी हुकूमत इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अफगान उबरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे और सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के बहादुर अफवाज सरहदों की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मराकश कसी हादसे में जिंदा बचने वाले पाकिस्तानी शहरियों की लिस्ट जारी कर दी गई। बच जाने वालों में 21 पाकिस्तानियों की शनाख्त हुई, जिनके नाम और पासपोर्ट नंबर जारी कर दिए गए। रबात में पाकिस्तान सफारती मिशन मुतासरीन के इमदाद के लिए मुतहरिक है। मुतासरीन के लिए खुराक, पानी, अद्वियात, कपड़ों समेत ज़रूरी सामान का इंतज़ाम किया। हुकूमत पाकिस्तान मराकश हुकाम के साथ करीबी राब्ते में है। तर्जमान दफ्तर खारजा कसी हादसे पर वज़ीर आज़म की कायम करदा 4 रुकनी टीम मराकश में मौजूद। तहकीकाती टीम मुख्तलिफ ज़ावियों से हादसे की तहकीकात में मसरूफ़। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट केस डीलिस्ट कर दिया गया। 7 रुकनी लार्जर बेंच की अदम दस्तियाबी के बायस मिलिट्री कोर्ट केस डीलिस्ट किया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 20 और 21 जनवरी समात डीलिस्टिंग का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने अरशद शरीफ कत्ल तहकीकात के समात के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज समात करेगा। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त भी आज समात के लिए मुकर्रर। मुल्क के लिए हम सबको इकट्ठा होकर चलना होगा। मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए, नवाज शरीफ की हिदायत। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून में जाती उमरा में अहम बैठक। लीगी क़यादत का मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुज़ाकरात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात बारे भी आगाह किया। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार। मुल्क की मुआशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग लाई हैं। महंगाई के ग्राफ में खातिर ख्वाह कमी आई है। मुआशी हालात मुस्बत समत की तरफ गामज़न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के रोड्स की तामीर मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब भर में रोड्स और हेल्थ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा।
पंजाब भर में राब्ता सड़कों की बहाली और तमीर व मरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। खेत मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। जब उस मुजरिम को, उसके हवारियों को सजा हुई है तो ये नहीं कह रहे कि जी हमने करप्शन की थी, एनसीए ने पैसा पाकिस्तान को दिया, हुकूमत पाकिस्तान को इन्होंने जेबों में डाल लिया। अब मजहब के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तुम मजहब कार्ड ले आओ या जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम्हारे पे मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो और रहोगे हमेशा। पूरी दुनिया ने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया। अब तुम आउट हो चुके। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। इस केस की मुजरिम और इसके हवारियों को सजा हुई है। एनसीए ने पैसा पाकिस्तान को दिया, उन्होंने जेबों में डाल लिया। उन्होंने रिश्वत के तौर पर 5-5 करात की अंगूठियां ली। करप्शन को छुपाने के लिए अब मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्लामी टच मजहब कार्ड इस्तेमाल करके झूठे बोलते हैं। अब जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम पर सर्टिफाइड डाकू की मुहर लग चुकी है। उन्होंने मुल्क में तकसीम डाली, सियासत को जहर आलूद किया। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। मुईशत की तरक्की के हवाले से आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पर बैरून ममालिक के सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत टेक ओवर कर रही है। मरियम नहीं, कोई नहीं, पंजाब हुकूमत की मजाल नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकती। ये आप देखेंगे 2 दिन के ख्वाब हैं, ये फैसला उड़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा चंद हफ्तों की बात है। देखिए, ये फैसला किसी भी अदालत में खड़ा नहीं रह सकता। ये फैसला बिल्कुल कायम नहीं रह सकता। मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ। 190 मिलियन पाउंड फैसले की कोई बुनियाद है ना कोई दलील। लिख कर देने को तैयार हूं। अलकादर ट्रस्ट का फैसला उड़ जाएगा। पंजाब हुकूमत की मजाल नहीं ट्रस्ट पर कब्जा कर सके। राजदारी डेट में ऐसा कुछ नहीं जो किसी को फायदा हो। कमीशन के बगैर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत को मुज़ाकरात से फरार के लिए चोर दरवाज़ा चाहिए। सदर ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं लगाई। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बदकिस्मती से अदलिया को जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल किया गया। ज़ियाउल हक के दौर में लाहौर किले में टार्चर सेल्स बनाए गए थे। लाहौर किला में मुख्तलिफ सियासी नुक्ता नज़र रखने वाले पर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। जबरी गुमशुदगियों और कैदियों से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दी। कहा जाता था कि मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। जजिस पर बात की जाती है। कानून तो एक है लेकिन फैसला क्यों मुख्तलिफ होता है। हमें स्कूल दौर में हकीकत से बरक्स पढ़ाया जाता रहा। पाकिस्तान में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में बज़ाहिर कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हों। एक तरफा फैसला करने के बजाय सियासतदानों से बात की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रिट नहीं, बज़ाहिर हुकूमत है ही नहीं। सूबे में रिश्वत का बाजार गर्म है। कुरम का मसला बातचीत से हल होना चाहिए। हम जिरगे से मसले के हल को तरजीह देते हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। फार्म 47 की पैदावार बलूचिस्तान की हकीकी नुमाइंदा नहीं। मसाइल के हल के लिए बलूचिस्तान की हकीकी क़यादत से बात करना होगी। CPEC में बलूचिस्तान के अवाम का हिस्सा होना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए सबको कानून के मुताबिक चलना होगा। हम आईन व कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम रहमान का तकरीब से खिताब।